and bringing about health and happiness in everyone's life and development through an individual's commitment to joyful living, selfless service, and self awareness. She's done a master's in food and nutrition in 1993 from GBPUANT, Pantnagar, and she's presently working as a head of department nutrition and dietetics, CLH Group of Hospitals, Ghaziabad. She has been associated with many social organizations since 2007. The focus of her work is to eradicate malnutrition and lifestyle related issues from all ages and genders and preservance of local inheritance. Now we are spreading across India. So right now we have our team consists of 12 members. Dr. Archana Gupta, the founder, Mrs. Madhubala Singh, who's from Delhi, Dr. Monica Gupta from UP, Mrs. Prasanna Agarwal from Telangana, Dr. Premlada Srivastava from Bihar, Dr. Preeti Pant from UP, Mrs. Poonam Mohan from Delhi, Mrs. Rajni Chandel from Himachal Pradesh, Mrs. Soni Gupta from Maharashtra, Mrs. Sunita Sharma from Rajasthan, myself, Swapnali Munin from Maharashtra, and Mrs. Veena Chadda from Uttarakhand. The vision of a foundation is to work towards building healthier and resilient communities, a holistic and proactive approach of improvement in child nutrition, health, and education, which is a prima facie important for us. Improving the livelihood in the surrounding by enabling the care of Mother Earth, giving, the global warming issues that we are facing right now with the change of temperature. We have to actually sow more trees and make our planet more green. The mission is to be a knowledge or execution partner of schools, NGOs, corporates, and government agencies, development of communities across India and abroad to ensure everyone gets happy and a healthy lifestyle. Our area of work so far has been menstrual health and hygiene, nutrition, naturopathy, yoga and meditation, counseling and training programs, save the nature, social awareness, preservation of culture and perspective, local heritage, traditional or knowledge. And we had a very wonderful session yesterday with some eminent faculties from Art of Living, and it was a beautiful session. I mean, so many things which we never knew from a regular, lifestyle that we are doing, the scientific reason behind that. That's what we got to know yesterday. Then the promotion of local language, special care for needs of differently abled, our work experience. Our work experiences along with other privileged and specially able people in different places of many states all around the nation with our women team leaders. We conduct seminars, workshops, webinars, competition, and one-to-one interactive sessions. And this COVID and pandemic has really helped us to utilize the technology in a right way. More than, all people have been on FB and Instagram and posting pics. I mean, we have utilized this technology to connect with people and to the right people. Online education lectures during COVID period on different topics related with nutrition, health, menstrual health, and hygiene. We have poster and drawing competition, one of the flyer you just saw right now. So today is the last day, children. If anyone has any ideas, please submit it. Please submit your, girl or child day posters. Blood donation camp, health checkup camps, tree plantation, donation drive, and also running a school and skill development program for underprivileged children and their family at Vaishali Ghaziabad, Uttar Pradesh branch. To show you something about our works done so far. During the COVID times, we have helped migrants, conserving our heritage, go green, go clean, India. We have donated homeopathic medicines during the COVID times. For building a self-reliant community for any disaster in our area, we have organized a mock drill. And of course, we believe in sharing our joys with our underprivileged. We are curating awareness by using the technology in the best of its use. And this week, as we're celebrating the National Girl Child Week, our programs so far have been, the last 4 days, we have covered
personality development, menstrual health and hygiene, significance of our Indian culture. And today we are going to talk about elimination of cervical cancer, a very important topic, which, as per Dr. Dhananjay Saranath, can be, a preventive measure can be taken for the same. So we are helping you go through the slideshows, and with Dr. Saranath's experience, we are going to, she's going to enlighten us on the same. And she is awesome. Trust me. So now I would like to call upon Dr. Archana Gupta, our founder member, to have a few words. And then I will, introduce our guest today. Thank you, Swapnali. Good evening, everyone. We at Swasti Sukham are celebrating National Girl Child Week from 18th to 24th January. In last 4 days, we have covered topics related to menstrual hygiene, laws for women, and also understood the scientific sessions behind our deep-rooted Indian culture and traditions. We had some eminent speakers from the respective field who gave us an insight on the same. Taking a step forward in the same direction, today we are going to talk about cervical cancer. As you all must be knowing, the January is Cervical Health Awareness Month in United States as well, right? And UK is also celebrating it from 18 to 24th of January 21 as Cervical Prevention Week. So Swasti Sukham is also on the same path and associated with the Cancer Patients Aid Association, which is founded in 1969 by Mr. Y.K. Sapru, recognized is founded in the gaps in addressing cancer as a health problem in India and embarked on creating an appropriate framework for addressing those needs. And today we are also having IMA West Ghaziabad organizing camp, health checkups, vaccination amongst underprivileged and under community. Dr. Shalini Agrawal is also with us. We are really privileged to have you all to this portal and joining us to listen our eminent speakers, Dr. Dhananjay Saranath from Mumbai and Dr. Shalini Agrawal will be joining soon from Delhi itself. So not taking much time, I request I request Swapnali to just introduce something, tell better little bit more about Dr. Saranath, and ma'am will open the session. Yeah, really we love, actually ma'am, आपसे बात करके ना भूल ही गए कि मैं सेशन भी लेना है. We are thinking like we are just chatting and गपशप मारे थोड़ी देर. It's really wonderful. Swapnali, please. Thank you very much. I truly agree with that. I mean, so we have Dr. Dhananjay. Yeah, so we have with us Dr. Dhananjay Saranath, who's an Executive Director, Cancer Patients Aid Association. Dr. Dhananjay Saranath is the Executive Director, Research Studies and Additional Projects at Cancer Patients Aid Association. Cancer Patient Aid Association is a 50-year-old non-profit organization that addresses cancer as a health problem through his distinctive philosophy of total management of cancer. So, without much ado, I think I will take the pleasure of calling Dr. Dhananjay Saranath. Ma'am, please give us some advice and your kind words. So, first, I would like to say that it's absolutely wonderful to hear of organizations like yours, Dr. Archana Gupta, and your whole team with you, because, Girl Child has always had a backdoor subsistence, backdoor education, backdoor entry in India. Very often, we ignore, the parents seem to ignore in the earlier days a girl child. But things are changing as you can see and as you can note. We just had the all women's airline, Indian Airlines had an all women trip to US and back. So we are giving them the prominence that they require. And this Girl Child Week, celebrating the Girl Child Week, is another attribute to our understanding of the girl child and promoting the girl child.
So I must congratulate the team, Archana Gupta and her team, for delving into these waters at this stage. Thank you very much. I, as Swapnil has already told you, and as Dr. Archana also told you, belong to the Cancer Patients Aid Association, where we, our director and chairperson, Dr. Y.K. Satru, decided 50 years ago to help cancer patients, which was very much needed at that stage. Cancer is a sort of a long-term treatment, and it's not feasible for most of our people, as we don't have very strong medical insurance and the kind of money and inputs which are required for cancer. So he initiated this with the idea of total management of cancer. Now, I'm going to talk today. May I have the first slide, please? Bhavna. Bhavna is my colleague. So before going into elimination of cervical cancer, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को पहले थोड़ा बहुत कैंसर की बातें करूं। तो पहले तो ये स्लाइड जो है थोड़ी पुरानी है और मुझे ख्याल नहीं रहा, बट आज हमारे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी संस्था है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कॉल्ड इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर। वो फ्रांस में बेस्ड है, लियोन फ्रांस में बेस्ड है। वो सब पूरे वर्ल्ड की 185 कंट्रीज में क्या कैंसर्स होते हैं, कैंसर्स बढ़ रहे हैं, कौन से कैंसर्स बढ़ रहे हैं, ये सब ध्यान में रखती है और सबको बताती है कि संभलो, अभी टाइम है। आपको शायद ख्याल नहीं होगा कि हर साल में वर्ल्ड में 18.1 मिलियन न्यू कैंसर केसेस डायग्नोज होते हैं। और इंडिया में आपको शायद ख्याल होगा कि हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, फिर भी इंडिया में 1.354 मिलियन न्यू केसेस ऑफ कैंसर हर साल में डायग्नोज होते हैं। अभी आज हमने सोचा कि वी विल फोकस ऑन विमेन्स कैंसर, बिकॉज हम लोग आज ये वीक है गर्ल चाइल्ड की, सो लेट अस गिव विमेन द प्रोमिनेंस व्हिच दे सो राइटली डिजर्व। सो दो कैंसर्स जो सबसे ज्यादा भारत में है, एक है ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा है सर्वाइकल कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो है अबाउट 1,62,000 नए केसेस ब्रेस्ट कैंसर के हर साल भारत में डायग्नोस होते, और शायद थोड़े से ज्यादा भी हो, बट हमारे रिकॉर्ड इतनी अच्छी नहीं है, मेडिकल रिकॉर्ड्स इतने अच्छे नहीं। और दूसरा नंबर का कैंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर, और सर्वाइकल कैंसर में करीब 1 लाख नए केसेस होते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो जीरो हम कर सके, हर एक कंट्री में जीरो हो सकेगा, या तो यानी कि दिस कैंसर सर्वाइकल कैंसर इज प्रिवेंटेबल। आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये आप जरूर ख्याल में रखें। भावना, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो अभी इवन सर्वाइकल कैंसर में जाए उसके पहले शायद सबको इतना ख्याल नहीं हो कि कैंसर क्या है। सो कैंसर क्या है? हमारी जो कोशिकाएं हैं उनका अनियंत्रित विभाजन जब होता है, सो उससे परिणाम होता है कैंसर। अभी ये कैंसर जो है हर एक लंग, फेफड़े का कैंसर हो या ब्रेस्ट स्तन का कैंसर हो या सर्वाइकल कैंसर हो, एक बात सर्टेन है कि वो कैंसर यानी कोशिकाएं का अनियंत्रित विभाजन। और क्योंकि हमको इसकी बहुत अज्ञानता है कि कैंसर क्या है, कई टाइम माए मेरे पास आती थी और बोलती थी कि देखिए हमारे बच्चे को कैंसर हुआ है, और बिल्डिंग में हमारे मोहल्ले में कोई उनके साथ खेलना नहीं चाहते हैं
क्योंकि उनको लगता है कि उनसे खेलने से, ये बच्चों से खेलने से हमको भी कैंसर हो जाएगा, हमारे बच्चों को भी कैंसर हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी अज्ञानता अभी भी हमारे पास भरपूर पड़ी हुई है। इसलिए वो अज्ञानता से हमको डर है, क्योंकि इतनी अज्ञानता है इसलिए हमको डर है कैंसर का, और उससे कलंक भी जुड़ा हुआ है। एक बात जो सबको लगता है कि कैंसर यानी डेथ सर्टिफिकेट। एक बार डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर हुआ है, तो माँ है, भाई है, बहन है, पिताएं हैं, किसी को भी कैंसर हुआ तो लगता है चलो अभी इनकी छुट्टी हो गई, अभी ये जी नहीं सकेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है। कैंसर का इलाज जरूर होता है, और अगर हम टाइम से योग्य टाइम पे योग्य समय पर उसका इलाज कराएं, उसकी हमको अवेयरनेस हो, हमको उसका ख्याल हो कि कैंसर क्या है, तो हम जरूर उसका उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो क्या जो सबसे ज्यादा गलत फहमी हमारे दिल में है, हमारे मन में है, एक ये 6 बात आप अगर सुनेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा कि कितनी गलतियां हम सब में भरी पड़ी है कैंसर के विषय में। सो ये गलतियां क्या है? एक है संक्रामक। हर एक कैंसर इन्फेक्शन से नहीं होता है। मैं आगे आपको बताऊंगी क्या है जिससे हमको कैंसर होने की शक्यता बढ़ सकती है, और क्या है जिससे कैंसर होने की शक्यता कम हो सकती है, जिससे हमको हेल्दी और हैप्पी लाइफ मिल सकती है। तो एक इन्फेक्शन, सभी कैंसर इन्फेक्शन या संक्रामक से नहीं होता है। कई अगेन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ। एक थोड़ी माएँ मेरे पास आई थी और बोली चलो हमारे बच्चा कल तक वो फुटबॉल खेल रहा था, और एक बार वो फुटबॉल के फील्ड में गिर गया, और गिर जाने से उसको घुटने में चोट लगी, और आज देखो वही घुटने में उसको कैंसर हुआ है। तो क्या चोट से कैंसर होता है? नहीं, ये गलत बात है। चोट से कैंसर नहीं होता है। मैं आपको बाद में बताऊंगी किससे कैंसर होता है। और दर्द, कैंसर के एक दूसरी बात क्या है कि कैंसर में हमारे यहाँ कई बहनें हैं जिनके ब्रेस्ट में कैंसर हुआ होगा कभी, तो बहुत देरी तक हमको मालूम नहीं पड़ता है कि स्तन में कैंसर है, वहाँ एक गांठ है। इसकी हमको अवेयरनेस होनी चाहिए, जिससे हम ख्याल रखें कि कुछ तो बिगड़ रहा है। अगर सर्दी हो या खांसी हो तो हमको दिखता है, हमको मालूम पड़ता है, पर कैंसर होने से काफी समय तक हमको मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि काफी कैंसर में पहले जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं उसमें हमको मालूम नहीं होता है, कुछ दर्द नहीं होता है, कुछ साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं। पर अगर हम अवेयर हो, अगर हम ख्याल रखें, तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और अगर डॉक्टर ने बताया कि नहीं कैंसर नहीं है तो हम खुशी खुशी घर आ सकते हैं। पर अगर कैंसर है तो वो पकड़ा जाएगा। और दूसरे हम लोगों को सभी कैंसर एक समान है, ये भी अलग, हर एक ऑर्गन के कैंसर अलग होते हैं। हर एक ब्लड कैंसर जिसको हम लिक्विड, जो हमारे शरीर में लिक्विड घूम रहा है, ब्लड है, खून है, उसके कैंसर काफी अलग होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग, ये ऑर्गन कैंसर होने से, यानी फेफड़े का कैंसर या घुटने का कैंसर या छाती का कैंसर या सर्विक्स का कैंसर, सो ये सब कैंसर अलग है। हर एक कैंसर में अलग प्रमाण के नुकसान होती है, अलग प्रमाण के ख्याल आते हैं, इसलिए सब कैंसर काफी एक दूसरे से अलग है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कैंसर का मतलब नहीं है कि हम इसका कोई इलाज नहीं है और मौत ही इसकी सजा है, बिल्कुल गलत फहमी। और
कभी कभी हमको होता है कुछ भी तकलीफ जो होती है वो हमको क्यों होती है, मुझे क्यों तकलीफ है, और किसी को कैंसर होगा, मुझे क्यों कैंसर है, ये मन में ख्याल आती है। बट सबको कैंसर हो सकता है, वो सब में हम भी हो सकते हैं, तुम भी हो सकते हैं, हमारे नजदीक के प्यारे लोग भी हो सकते हैं और दूर के लोग भी हो सकते हैं। हाय डॉक्टर शालिनी, गुड इवनिंग। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। फिर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ट्रॉमा या मार या चोट लगने से कैंसर नहीं होता। ये मैंने एक उदाहरण दी है आपको। ये देखिए त्वचा है, आपके पहले लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं, अच्छी त्वचा है, कुछ भी तकलीफ नहीं है। अगर आप राइट में जा, आपको कोई जख्म हो गया, कहीं कैंची लग गई, कहीं मार लग गया, तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो बिगड़ जाती है और वो जो विभाजन उसका होता है ठीक से नहीं होता है। तो आपने देखा एक वैली के जैसे कुआं हो गया, परंतु ये कैंसर नहीं है। तो ये सब जो हमारी कोशिकाएं हैं बाजू में, वो सब वापस ठीक हो जाती हैं और आप देखते हैं वापस हमारी त्वचा बिल्कुल सामान्य हो जाती है। अब कैंसर है तो क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे। ये देखिए, ये जो कैंसर है उसको हम दुष्ट कोशिका कहते हैं, या उसको रोग सेल कहते हैं, या कैंसर सेल कहते हैं। तो ये सेल जो है चोट से नहीं लगती है, इंटरनली हमारे जो अनुवांशिक सेल्स जो है उसमें कुछ तो बिगड़ गया है और इसको, ये जो सेल है वो इसलिए कैंसर सेल हो गया। अभी ये कैंसर सेल शांति से बैठ सकता है, या उसको हम ज्यादा पसंद है तो गड़बड़ करके बढ़ने लगता है। अगर वो बढ़ने लगता है तो इसकी जो आप देखते हैं सामने उसके पास में जो सामान्य कोशिकाएं हैं वो कितनी व्यस्त और कितनी ठीक तरह से है, और ये जो कैंसर की कोशिका है वो कैसे बढ़ रही है, देखो एक जैसे गांठ हो जाएगा यहाँ वैसे होती है। और ये ही नहीं, कैंसर ऐसे ही नहीं होती है, बट क्या होता है उसके बाद में ये जो कैंसर की गुठली है उसमें से 2-4 सेल्स बाहर निकल जाते हैं। आप देख रहे हैं नेक्स्ट इसमें कि वो अपने खून से बाहर निकल के उसकी सीमा से बाहर निकल के आगे बढ़ती है और फिर वो आगे बढ़ के कहीं भी जा सकती है और कहीं भी बैठ के कहीं भी मेटास्टेसिस हो सकती है। अभी जो कैंसर है, अगर ये कैंसर हम देखें तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, परंतु ये कहाँ जाके बैठी है हमको मालूम नहीं पड़ता है, और फिर जब वहां जाके वो बढ़ जाती है तभी हमको मालूम पड़ता है। इसलिए उसको कैंसर की ट्रीटमेंट या उसका उपाय जितनी देरी होती है उतनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, उतनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, नेक्स्ट प्लीज। कि मैंने कहा कई चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है, जो अगर हमारे एक रोग सेल हो गया, एक कैंसर सेल आ गया तो वो बढ़ सकता है, कब बढ़ेगा वो हम कह नहीं सकते। इसलिए कई चीज है जिसमें हम ख्याल रख सकते हैं और कई चीज है जो हम नहीं कुछ कर नहीं सकते, हम डेस्परेट हो जाते हैं। एक तो कैसी चीजें हमको अवॉइड करनी चाहिए, एक है तंबाकू। तंबाकू खाने से बहुत सारे कैंसर्स है जो हो सकते हैं, उनको प्रमोशन हो सकता है, उनसे हमारे सेल्स जो हमारी कोशिकाएं हैं बिगड़ जाती हैं और कैंसर होने की शक्यता बढ़ जाती है। दूसरा है शराब। अभी भारत में इतने लोग तंबाकू इस्तेमाल करते हैं और अगर देखा जाए तो पूरे संसार में 5 मिलियन लोग हैं जो ये तंबाकू खाने से मर जाते हैं। ये सब हमको मालूम है फिर भी हम तंबाकू खा लेते हैं। फिर शराब भी हमको मालूम है कि शराब हमारे लिवर के लिए खराब है और बहुत सारी तकलीफें हमको दे सकती है, पर काफी लोग हैं एक घूंट पीने से कुछ नहीं होगा,
1 से वो 2 घूंट पीते हैं, 2 कप पीते हैं, 3 कप पीते हैं, और उसका फिर परिणाम होता है लिवर कैंसर। उसका परिणाम हर एक कैंसर में वो बढ़ता है, हर एक कैंसर की प्रतिशत बढ़ती है जब हम तंबाकू और शराब लेते हैं। दूसरा क्या है, हमारी जीवन शैली कैसी है, उस पे भी आधार है। तो वो भी तो हमारे हाथ में है, हम किस तरह से जिए, हम क्या खाएं, हम क्या करें क्या नहीं, वो तो हमारे हाथ में है। आहार, आहार और मोटापा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजों से हमको कैंसर हो सकता है। कई कैंसर्स है, जैसे कि हमारे सर्वाइकल कैंसर है, हेपेटोसेल्युलर कैंसर है, लिवर का कैंसर है। ये इसमें एक वायरस की भी उपस्थिति है, और वो वायरस के कारण से हमको वो कैंसर हो सकती है। बट ज्यादातर हमारे स्तन का कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, लिवर का कैंसर है, ये सब संक्रमण से नहीं होता। और हम लोग फॉर्चुनेट है कि हमारी स्किन जो है वो थोड़ी रंगीन है। ये रंगीन स्किन से हमको सूर्य का अनावरण कम रहता है, उनके जो रेज है वो हमको इतने डीप पेनिट्रेशन करके कैंसर नहीं करते। बट कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया जो है, उसमें ये स्किन कैंसर है, त्वचा की कैंसर है, वो बहुत प्रमाण में है, क्योंकि उनको सूर्य का, वो गोरे है और सूर्य बहुत तीव्र, उनमें जो रेज है उनसे उनको कैंसर हो सकता है। बट हम लोग नसीबदार हैं, हमको सूर्य से ज्यादा कैंसर नहीं होता है। सो ये सब चीज है, उसका अगर हम ख्याल रखें तो हमको कैंसर होने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली मैं आवश्यकता क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम उसको बुलाते हैं, हम कैंसर को ये सब करके कहते हैं कि आप वेलकम है हमारे शरीर में। इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। और क्या चीज है जो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और इसलिए हमको उसके पीछे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए या चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी मैं ओल्ड हूँ, कभी कभी होता है अगर 20 साल की होती तो कितना और मैं कर सकती, पर अभी तो 20 साल नहीं हो सकते मुझे। तो ये जो उम्र है हमारी, हम छोटी या बड़ी नहीं कर सकते। बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो अपनी उम्र तो नहीं बदल सकते। हाँ, रहने की उम्र, रहने की स्थिति बदल सकते हैं, बट उम्र नहीं बदल सकते। फिर लिंग, क्या हम स्त्री है और पुरुष बन सकते हैं, या पुरुष है स्त्री बन सकते हैं? सुपरफिशियली अगर बना भी जाए तो दूसरे हमारे सब हॉर्मोन्स है, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसलिए कई कैंसर्स है, जैसे कि स्तन का कैंसर है, अंडाशय का कैंसर है, ये तो सिर्फ स्त्री को हो सकता है, लेडीज को हो सकता है। और कई वैसे कैंसर्स हैं जो पुरुषों में होता है, जिसको हम प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, या पौरुष ग्रंथि का कर्करोग। ये जो है वो तो पुरुष में ही होता है, हम में प्रोस्टेट नहीं है तो उनको प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा। फिर हमारी जो अनुवांशिक, हम किस घर में जन्म लिया है हमने, और ये जैसे काले अमेरिकन है, सफेद अमेरिकन है, एशियाई है, हमें दूसरे दूसरे कैंसर ज्यादा है। अभी ये सब एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, कितने संसार में किस जगह में कैसा कैंसर हुआ है, उस सब से हमको मालूम पड़ा कि ये सब हो सकता है। जैसे कि हमको मालूम पड़ा कि कोविड का जो रोग है, वो वायरस जो है वो चाइना में पहले आया था और फिर सब जगह स्प्रेड हुआ। ये सब एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होता है। और कई कैंसर्स है जो हमारे माता या पिता या भाई या बहन को हुआ, तो उसका ख्याल रखना चाहिए कि ये कैंसर हम में होने की भी आवश्यकता बढ़ जाती है। अगर फैमिलीज में किसी को भी कैंसर नहीं है तो हमको भी होना कम चांसेस है, कम प्रतिशत है। और अगर किसी को कैंसर है, जैसे कि माँ को अगर स्तन का कैंसर है, तो बेटे को जरा ख्याल रखना चाहिए ताकि वो जाके ठीक समय पर चेकअप करवा सके। नेक्स्ट प्लीज भावना।
ओके, सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तंबाकू से फेफड़े का, मुंह का कैंसर, और मुंह का कैंसर हमारे भारत में पुरुषों में वो नंबर 1 कैंसर है, सबसे ज्यादा कैंसर है। लैरिंग्स का है, फेफड़े का कैंसर भी जो है, लंग्स का कैंसर बहुत डिफिकल्ट कैंसर है। हमारे पास 2 लंग्स है, फिर भी उसको ट्रीट करना थोड़ा, पर्टिकुलरली जब लेट स्टेज में ट्रीट करें तो डिफिकल्ट होता है। शराब पीने से भी मुंह, गले, लैरिंग्स, स्तन, आंत्र, जिगर, ऊपरी पाचन तंत्र, बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं। और कई कैंसर है जो संक्रमण से होते हैं, जैसे लिवर का HBV से, सर्विक्स का HPV से, पेट का एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है H. पाइलोरी, ऐसे थोड़े संक्रमण से हो सकते हैं। आहार से बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं, और ज्यादातर में हमारा जो वेजिटेरियन डाइट है वो सर्वोत्तम डाइट है। अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाए तो कैंसर की चांसेस कम है। और जो लाल मांस में भी अगर सफेद मांस खाए या फिश खाए तो उससे कैंसर बढ़ता नहीं है, परंतु लाल मांस जो है उससे कैंसर बढ़ सकता है। मोटापा, ये भी ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो कैंसर कैसे हम लोग, ऐसा नहीं कि कैंसर हो जाने से कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, उसका कुछ उपचार नहीं है। जो कॉमन उपचार है, एक है सर्जरी, शल्य चिकित्सा, दूसरी है दवाइयां देना यानी केमोथेरेपी, फिर फोकस्ड टारगेटेड थेरेपी है, फिर अभी ये हमारे पास थोड़ी टीकाएं हैं, टीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोविड में टीका आ गया है, HPV में, हमारे सर्वाइकल कैंसर में तो अरसों से, 20 साल से टीका है, बट कितने हम लोग ने, कितनों ने ये टीका लिया है? अगर लिया होता तो आज हमारी कैंसर बहुत कम हो जाती। ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है, UK है, USA है, ये सब में स्कूल के बच्चों को ये टीका देते हैं, इसलिए वहाँ कैंसर हमसे 0.3% होता है, बहुत कम होता है। हमें बहुत ज्यादा है क्योंकि हम टीका, स्क्रीनिंग वगैरह नहीं करते। नेक्स्ट प्लीज। और मैंने बताया कि कैंसर क्या एक बहुत महत्व की बात मैं बताती हूँ कि कैंसर जितना जल्दी हम पकड़ सके उतनी उसमें से बचने के चांसेस, प्रतिशत बहुत बढ़ जाती है। अगर अर्ली स्टेज जो है, स्टेज 1 और 2 में अगर कैंसर पकड़ा जाए तो द चांसेस कि 80% इसमें हम बच सकते हैं। और अगर स्टेज 3 या 4, इनको हम एडवांस स्टेजेस बोलते हैं, उसमें अगर ये कैंसर पकड़ा जाए तो चांस ऑफ सर्वाइवल, जीने की आशा 5 साल से ज्यादा 20% में लोगों में होगी अगर वो देरी से कैंसर पकड़ा गया तो। और ऐसे कैंसर है हमारे जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर है लेडीज के लिए, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। इसमें ब्रेस्ट कैंसर, पहले ही किसी ने मुझे पूछा था, आई थिंक, कि ये ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है? तो वो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो अंदर से होता है, हमारी जो कोशिकाएं हैं बिगड़ जाती है और कैंसर होता है। सो ये हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, डिले कर सकते हैं, बट अगर एक कैंसर सेल उसमें आ गया तो फिर वो कैंसर हमको हो सकेगा। जब सर्वाइकल कैंसर है कि इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं पहले से, जैसे ही जो प्री मैलिग्नेंट कैंसर के पहले जो चेंजेस होते हैं वो अगर हम पकड़ ले तो हम इससे बिल्कुल बच सकते हैं, इस कैंसर होने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट। और सॉरी भावना, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर देरी से कैंसर पकड़ा जाए
सो सपोज कि ये फेफड़े का कैंसर है, हम लोगों को ये फेफड़े का कैंसर है, वो सिर्फ फेफड़े में हो सकता है, बट अगर वो बहुत टाइम हम उसको रहने दें तो फिर वो फेफड़े से लिवर में जा सकता है, फेफड़े से बोन में जा सकता है, फेफड़े से ब्रेन में जा सकते हैं, बहुत जगह वो फैल सकता है। और जब फैल गया तो ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए तभी भी ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं होगी, परंतु वो उसकी सक्सेस की रेट कम हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज। अभी नाउ मैं थोड़ा सा फोकस करती हूँ अपनी लेडीज के कैंसर। तो एक मैंने बताया, एक तो स्तन का कैंसर है, वो करीब 1,62,000, दैट मीन्स 1,62,000 नए केसेस भारत में होते हैं। और सर्वाइकल कैंसर है, वो 1 लाख सर्वाइकल कैंसर केसेस हर साल, एक साल नहीं, हर साल ये कैंसर का हम डायग्नोसिस हॉस्पिटल में, सेंटर्स में हम नाम के साथ कह सकते हैं कि इतने सारे कैंसर्स हुए। और कई प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह शायद वो हमने नंबर भी नहीं लिए होंगे। सो कम से कम ये कैंसर्स हर साल, इतने कैंसर्स हमारी लेडीज में होते हैं। फिर देखिए यहाँ जो अर्बन एरियाज है हमारे, बॉम्बे, फिर मद्रास, दिल्ली, सब जो अर्बन एरिया मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, उसमें हर 30 लेडीज में, 20 से 30 लेडीज में एक लेडी को शायद कैंसर होगा। और ये दो कैंसर्स है, इसमें अगर देरी से ही कैंसर पकड़ा जाए तो मॉर्टेलिटी यानी मौत भी हो सकती है। तो ये मौत तो हमारे इग्नोरेंस से हुई ना, क्योंकि हम डॉक्टर के पास गए नहीं। और सर्वाइकल कैंसर में क्या है, उसका प्री कैंसर स्टेज है, कैंसर होने के पहले जो चेंजेस होते हैं वो भी मालूम है, वो भी डिफाइंड है। इसलिए जब वो चेंजेस हो तो कैंसर को पकड़ लेना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर है इंडिया में, और सर्वाइकल कैंसर नंबर 2 है। 2012 तक सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 था, परंतु अभी क्या हो गया कि बहुत सारी लेडीज के अप्रोच टू लाइफ चेंज हो गई है, इसलिए उनकी रहने की परिस्थिति वगैरह अलग हो गई है, इसलिए थोड़ी ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर कम हो रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो ये है ब्रेस्ट कैंसर। कोई भी भाग में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, हमारे कोई भी ब्रेस्ट, कोई भी पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट में। शहर में ज्यादा है, हमें 1 in 30 वुमेन, अमेरिका जैसे स्टेट कंट्री में 1 in 8 वुमेन होता है। और हमारे ग्रामीण गांव में, क्योंकि उनकी रहने की लाइफस्टाइल वगैरह अलग है, 1 in 60 में ये कैंसर हो सकता है। और परंतु क्या बात है, अमेरिका, यूके, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा है सर्वाइकल, ये ब्रेस्ट कैंसर, पर उनका इलाज भी बहुत ज्यादा अच्छा, क्योर होना 90% से भी ज्यादा होता है। और ये है कि हमारे कंट्री में 40 से 50%, 40 से एट द मोस्ट 60% क्योर रेट है, यानी कि उसका उपचार हो सकेगा। नेक्स्ट प्लीज। ओके, और कौन सी लेडीज को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? एक तो ज्यादातर कैंसर, ये ब्रेस्ट का कैंसर ज्यादातर 45 इयर्स, अराउंड 45 इयर्स में होता है। 45 to 55 या 58 इयर्स तक उसका पीक रहता है। और इसके साथ एसोसिएटेड है मोटापा, प्रारंभिक रजोदर्शन कब आपको हुआ है, क्योंकि ये हार्मोनल बेस्ड है, इसलिए हमारे जब हम रजोदर्शन होता है तब हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, इसलिए ख्याल रखना चाहिए। देर से जल्दी मेंस्ट्रुएशन और डिलेड मेनोपॉज होती है हम में,
तो वो पीरियड बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां वो टाइम पे कैंसर होना ज्यादा शक्य है। फिर अगर घर में किसी को हुआ हो, या हम लोग बहुत सारा नॉन वेजिटेरियन खाते हो, या बच्चे जो होते हैं, बहुत ही पैराडॉक्स है कि बच्चे अगर बहुत जल्दी हो गए तो हमको स्तन के कैंसर से प्रोटेक्शन मिलता है, परंतु इससे सर्वाइकल कैंसर बढ़ता है। और अगर बिना बच्चे, जो बच्चे जब पैदा होते हैं, माँ ने उनको दूध पिलाया और जितने 1 साल तक दूध पिलाया तो उनको इतना कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का प्रोटेक्शन मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। सो वो जरा हम ख्याल रखें, और अगर आप नौकरी करते हो या नहीं करते हो, इस तरह से अरेंज करें कि जब बच्चे हो, बच्चे 25 से 30 साल तक हो तो बहुत अच्छा है, और 1 या 2 या 3 बच्चे से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। और हर एक बच्चे को 1 साल तक अगर दूध पिलाया जाए तो माँ को, बच्चे को भी उससे बहुत प्रोटेक्शन मिलता है, बट माँ को भी ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्शन मिलता है। और अगर जल्दी इसका उपाय हो जाए तो उसका उपचार भी कम आक्रामक होता है, कम आघात रहता है। बाद में जब ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाता है तो कम दर्द होता है, कम लागत होता है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, बहुत बार बताया, और एक बार बताऊंगी कि प्रारंभिक चरण अगर जल्दी किया जाए तो 80 to 90% इसका इलाज हो सकता है, और देर से अगर इसका डायग्नोसिस हो जाए तो 20 से 30%। तो कितना फर्क है। इसलिए अगर हम अलर्ट रहे, हम सावधान रहे, तो हमको ब्रेस्ट कैंसर हो भी गया तो कुछ बड़ी बात नहीं है, उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कि और क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व की बात है कि उसकी हम ख्याल रखें और जांच रखें। जैसे ही लेडीज को मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है तो 20 साल के बाद में उन लोगों को खुद अपनी ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन खुद कर सकते। हर महीने जब मेंस्ट्रुअल पीरियड हो गया, उसके 1 या 2 दिन के बाद अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते। हर एक साल में, ये हर महीने में खुद कर सकते हैं। हर एक साल में डॉक्टर के पास जाके, हमारे जो गायनिकोलॉजिस्ट है उसको बता के वो अपनी छाती चेक कर सकती है। और 45 इयर्स के बाद में, कई लोग 50 साल बोलते हैं, कई 45 इयर्स, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रेगुलेशंस और गाइडलाइंस है। उसके बाद में ये जो है मैमोग्राफी वो करनी चाहिए, ताकि एक बार अगर मैमोग्राफी में कोई कैंसर नहीं है तो उसके बाद आपको डॉक्टर बताएंगे, अच्छा 5 साल के बाद फिर चेक करवाना, या 3 साल के बाद मेडिकल हिस्ट्री जान के वो बता सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और ये सब दवाइयाँ देखिए, ये सब दवाइयाँ हैं। ये है सर्जरी, मैंने आपको पहले ही बताया, ये है कीमोथेरेपी, फिर रेडिएशन थेरेपी। ये 3 जो थेरेपी है, उपचार के रूट्स हैं, वो सब तो बहुत ही अभी कॉमन है और हर एक हॉस्पिटल में मिलते हैं। उसके बाद भी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, दूसरे भी उपचार हो सकते हैं। और हम लोग जो कैंसर एसोसिएशन में है, सो ये सब बातें जो है वो हम कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में हम इंटरैक्टिव सेशन लेते हैं, उनको समझाते हैं कहाँ कैंसर होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए, क्या इसमें गलत फहमियाँ हैं, हमको क्या ठीक बात बताई है। और जब ये हम लोग जो है वो ऐसे क्लासेस लेते हैं, जाके हम लोग सब जगह ये बताते हैं, फिर जल्दी कैसे उसका उपचार किया जाए, जल्दी कैसे पकड़ा जाए, या अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। कैंसर से कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर कैंसर के बाद कई लोग जो
अफोर्ड कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कोई नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको हम हमारी रिहैबिलिटेशन सेंटर में वापस नौकरी देते हैं, उनको नॉर्मल लाइफ कैसे करना है, इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन करते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ट्रीटमेंट के पैसे देते हैं, सब कुछ कैश नहीं देते हैं बट वो प्रोविजन करवा देते हैं। बच्चों, उनके बच्चों को एजुकेशन की भी तजवीज़ हम कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये अभी तक हम लोग ने ये 50 साल में करीब, पहले बहुत थोड़े लोगों को चेक करते थे, अभी हम लोग ने करीब 350,000 लोगों, मेल्स एंड फीमेल्स को चेक किया है कैंसर के लिए, करीब 6,500 कैंप्स में, और इसमें हम लोगों ने 600 कैंसर पेशेंट्स को बहुत जल्दी उनका कैंसर पकड़ लिया है। तो वो बिल्कुल इसमें ट्रूली जो हम किताबों में पढ़ते हैं, हमने देखा है कि जब उनको जल्दी पकड़ लिया तो 80% वो लोग क्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये सभी कैंसर में, सिर्फ स्तन का कैंसर नहीं, करीब सभी कैंसर्स में ये नॉर्म है कि जल्दी पकड़ो तो क्योर हो जाता है, देर से पकड़ो तो ज्यादा तकलीफ होती है। ये फीमेल्स का मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। सो ब्रेस्ट कैंसर ये भी आपको बताया है कि वो फर्स्ट कैंसर है अभी हिंदुस्तान, भारत में नंबर 1 कैंसर है। 160,000 2018 में मैंने आपको वो ऑर्गेनाइजेशन बताई थी, लियोन फ्रांस में, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर, उन्होंने नोट किया है हमारे 162,000 ब्रेस्ट कैंसर केसेस, एंड ये अर्ली रिस्क फैक्टर्स वगैरह बताए हैं। देखिए ये नंबर 1 बम्बई, दिल्ली, बैंगलोर, अहमदाबाद, भोपाल और त्रिवेंद्रम में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर। नेक्स्ट प्लीज। और ये भी आपको बताया है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्पेसिफिकली सर्जरी, अगर छोटा कैंसर की गांठ अगर छोटी हो तो सर्जरी से निकाल देते हैं। फिर वो पेशेंट की एज क्या है तो उसको कीमोथेरेपी देते हैं और चेक करते, हार्मोन थेरेपी देते हैं, टारगेटेड थेरेपी देते हैं, चेक करते हैं कि आगे जाके भी उनको कैंसर न हो। और 5 साल, जब 5 साल किसी को कैंसर की रिकरेंस नहीं हो तो हम उसको क्योर बोलते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज में वो क्योर रेट 95%, अभी मैं पढ़ रही थी थोड़े दिन पहले कि 99%, यानी सब लोग क्योर हो सकते हैं। 99% इज एज गुड एज 100%। नेक्स्ट प्लीज। ये भी आपको बताया है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, एक ब्रेस्ट कैंसर में एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप बोलेंगे कि दीदी आपने तो बताया कि 45 इयर्स के बाद ही ये कैंसर होता है, और हम लोगों ने देखा है कई छोटी लड़कियों को भी हो जाता है, 25-30 साल में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर में है 45 इयर्स के पहले जब होता है तो वो कैंसर जो है वो इनहेरिटेड होते हैं या अनुवांशिक होते हैं। सो 25 से 35 साल में होते हैं, और इसके साथ में पॉसिबिलिटी कि अंडाशय का कैंसर हो उसकी भी जोखिम बढ़ जाती है। और इसमें जो है थोड़े जीन्स, 2 जीन्स है, BRCA1 और BRCA2 जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अंडाशय का कैंसर का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये जो BRCA1 BRCA2 म्यूटेटेड अंडाशय का कैंसर होता है उसमें क्या होता है कि बहुत वो, उसको हम साइलेंट कैंसर कहते हैं, मालूम नहीं पड़ता है कि कैंसर है अंडाशय में, और सडनली एकदम 4th स्टेज में पहुंच जाता है। इसलिए बहुत ख्याल रख के डॉक्टर के पास, अगर फैमिली में किसी को कैंसर है तो दोनों ब्रेस्ट, स्तन का कैंसर और अंडाशय, ओवेरियन कैंसर चेक करवाना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज।
अच्छा, तो मैंने आपको ब्रेस्ट कैंसर की, आप गूगल में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस मिलेंगे कि कैसे चेक करना चाहिए। ये देखिए, आप जब स्नान करने जाती है तो अपनी छाती को चेक कर सके कि उसमें कहीं गांठ तो नहीं है, या जब बाथरूम से बाहर आते हैं स्नान करके तभी मिरर के सामने चेक कर सके कि छाती ठीक है कि नहीं, या तो फिर सो के हर एक अपनी 4 उंगलियों से आप चेक कर सकते हैं, हर एक निपल के साथ में आगे घूम 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 के पूरी छाती को चेक कर सकते हैं कि कहीं दबा के चेक कर सकते हैं कि कहीं गांठ तो नहीं है। गांठ बहुत बहुत प्रतिशत ये गांठ जो है वो फाइब्रॉइड हो सकती है, कैंसर होने की जरूरत नहीं, परंतु अगर कैंसर है तो वो जल्दी पकड़ी जाएगी और उसको चेकअप हो जाएगा। तो कुछ भी अगर एबनॉर्मल लगे, कुछ भी अगर असामान्य लगे तो डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। और इसको ये जो चेकअप है करीब 5 या 10 या 15 मिनट लगती है, इसलिए हमने कंटाला नहीं करना चाहिए। जब भी जो यंग गर्ल्स है 20-21 साल के बाद, उन्होंने 25 साल तक ये खुद चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद में 5 साल में एक बार या जैसे डॉक्टर बताए उनके पास चेक कर लेना चाहिए। सो हर मासिक धर्म महिलाओं को 1 या 2 दिन बाद चेक कर लेना चाहिए, उनकी मासिक हो गई उसके बाद में। और जो मेनोपॉजल है उन्होंने भी दिन में 1 दिन, शायद तुम्हारे जन्मदिन का दिन वो 5 तारीख हो तो 5 तारीख को, हर 5 तारीख को चेकअप करना चाहिए। और जो गर्भवती हो उनको भी 1 दिन अपनी डिसाइड कर देनी चाहिए और चेकअप कर लेना चाहिए। बट ब्रेस्ट चेकअप करने से बहुत ही तकलीफें बाद में कम हो जाती है। इसलिए मेरी विनंती है कि हर एक लेडी 20-21 साल जैसे आपको लगे कि जरूर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो शुरू करना ही चाहिए। अपने शरीर को हमको खुद जानना चाहिए और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं। और बिल्कुल थोड़ी भी शंका हो मन में तो जरूर डॉक्टर के पास जाइए। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अभी मैं जो हमारी मेन टॉक है बहुत बड़ी नहीं है पर बहुत सिंपल है कि ये जो हमारी गर्भाशय की मुख या ग्रीवा का जो कैंसर है वो महिलाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये 1 लाख केसेस है, 97,000 नए केसेस हर साल होते हैं। वो होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम खुद उसको इनवाइट करते हैं क्योंकि हम ख्याल नहीं रखते हैं अपना। और बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हम बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे, पति का ख्याल कैसे रखेंगे, और अपने बूढ़े माता पिता या मदर इन लॉ फादर इन लॉ को कैसे ध्यान से देख सकेंगे। इसलिए अगर हम खुश हैं, हम स्वस्थ हैं, तो हम जरूर बहुत ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कंट्री को भी हम हेल्दी एंड हैप्पी कंट्री बना सकते हैं। तो ये सब हमारे फीमेल्स के हाथ में है, मेल्स के हाथ में नहीं है। सो प्लीज आप ध्यान रखिए। और ये कैंसर देखिए, यहाँ पे ये जो अपना गर्भाशय है उसका मुख है, उसमें ये कैंसर होता है। और ये कैंसर एक वायरस है, जैसे कोविड का वायरस आप सब लोग जानते होंगे, वैसे ये एक वायरस है जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या मानव पैपिलोमा वायरस कहते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो उच्च जोखिम, हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, क्योंकि ये संक्रमण होने के कारण हमको सर्वाइकल कैंसर होता है। और अद्भुत है कि ये कैंसर हमको इसका रोकथाम कितना आसान है और कितना योग्य है वो हम देख सकते हैं। 2-3 चीज हम कर सकते हैं। एक तो जिसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, ये जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो हम ये एक वैक्सीन बनाया है। अभी पूरे वर्ल्ड में ये वैक्सीन
2007 से, यानी अभी करीब 14 साल से ये वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में 300 मिलियन डोजेस दिए हुए हैं ऑलरेडी, एकदम सेफ, यानी संवेदनशील। ये जो HPV वायरस है, वो वायरस एकदम, उसकी जो वैक्सीन है एकदम सेफ है और एकदम सिक्योर है, एकदम एफिकेशियस है। सो इसका उपाय बहुत है सर्वाइकल कैंसर बंद या उस पर रोकथाम करने के लिए। सो प्रारंभिक जांच है, अवेयरनेस, हम लोगों को इसकी जान पहचान होनी चाहिए वायरस की और सर्वाइकल कैंसर की, और वैक्सीनेशन, ये है प्राइमरी प्रिवेंशन या प्रारंभिक प्रिवेंशन। और दूसरा है स्क्रीनिंग, इसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं, दूसरे नंबर का प्रिवेंशन। और ये है, हम 3 तरीके से ये कर सकते हैं। एक है पैप स्मीयर, दूसरा है HPV डिटेक्शन, और तीसरा है VIA, वो मैं आपको बताऊंगी। और ये जो टीकाकरण है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर 9 साल के बाद अगर ये टीकाकरण हम अपने स्कूल में सभी बच्चों को दे दे, तो किसी को भी आगे बढ़ के, अभी इसकी 14 साल तक की ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि ये बूस्टर डोज देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, सो अगर हमको हमारे इंडिया की फ्यूचर लड़कियों को बचाना है, तो ये कैंसर हमको पूरे भारत से निकाल देना चाहिए। सो ये मुझे बहुत पसंद है कि ये देखिए कितने सब वाइब्रेंट लड़कियां हैं, कितनी लाइफ है उनमें, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी वैक्सीन ले लिया है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, सो अभी मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि गर्भाशय की मुख जो है उसका जो कैंसर, उसके सेल्स, कोशिकाओं में जब कैंसर होता है तो वो है सर्वाइकल कैंसर। और ये ह्यूमन पैपिलोमा, देखिए ये दिखते हैं कितने नादान, बट बहुत ही खतरनाक वायरस है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, तो एक बहुत बड़ी बात है, कैंसर में ये बहुत कम हम देखा जाता है कि 100% ऑफ द पीपल के लिए कॉज सेम है। सो क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स है और किस तरह से ये चेकअप की हुई है, मैंने यहाँ 99% ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसीलिए हमारे WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने भी इसके वैक्सीनेशन का अनाउंसमेंट किया है। अभी 2019 में उन्होंने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में से ये कैंसर हटा लेना चाहिए और इसके लिए वैक्सीनेशन की जरूरत है। और वैक्सीन्स जो है वो बहुत सेफ है, बहुत एफिकेशियस है। एडवर्स इफेक्ट इसमें बहुत ही सिंपल एडवर्स इफेक्ट है। जहां हम इंजेक्शन डालते हैं, हाथ में इंजेक्शन डालते हैं, तो वहां थोड़ा सा लालाश या थोड़ी सूजन ऐसे हो सकता है। कभी अगर हम छोटी उम्र की बच्चियों को देते हैं तो उनको कभी चक्कर आ जाते हैं 1 मिनट के लिए, कभी वो लोग डर जाते हैं। सो वो तो हर एक वैक्सीन में होता है, पर ये वैक्सीन जो है बहुत सेफ है, बहुत एफिकेशियस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है हम लेडीज को सर्वाइकल कैंसर से दूर रखने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। तो खाली क्या हुआ, बहुत ही ये जो वायरस है, जैसे फ्लू कितने सारे लोगों को होता है, उसी तरह से ये जो वायरस है वो फ्लू वायरस है। वो सब लोगों में, आज मुझे सर्दी हुई, कल तुमको होगा, सबको होता रहता है। इसी तरह से ये जब सेक्सुअली एक्टिव गर्ल्स हो जाती हैं तो ये वायरस 80% ऑफ द गर्ल्स में ये वायरस रहता है। और ये वायरस की जरूरत बहुत ही है अगर सर्वाइकल कैंसर होना हो तो।
अगर नहीं है ये वायरस तो सर्वाइकल कैंसर भी नहीं होगा। सो परंतु जिसको ये वायरस है, वो सब वायरस, जिनको ये वायरस है, सभी लोग कैंसर नहीं होता है, सभी लोगों को ये कर्क रोग नहीं होता। सो इसके साथ में और रिस्क फैक्टर्स है, लाइक एकाधिक यौन साथी, एक से अधिक यौन साथी होने से ये वायरस हमारे शरीर में आ सकता है और इससे कैंसर हो सकती है। फिर प्रारंभिक आयु, पहला प्रसव कब हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। पहले भी ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सर्वाइकल कैंसर के लिए भी इम्पोर्टेंट। कितने बच्चे हैं, अगर दो बच्चे इज परफेक्ट। आजकल की दुनिया में 2 बच्चों को भी बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, सब कुछ देना बहुत आसान नहीं है हम सब लोगों के लिए। फिर मौखिक गर्भ निरोधन, कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेना, बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से भी इसकी रिस्क बढ़ जाती है। मोटापा तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, तंबाकू भी बताया है, और पर्सनल हाइजीन, गरीब व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए, वो हर एक चीज में ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज। सो 10 चीज का ख्याल रखना चाहिए सर्वाइकल कैंसर के लिए। एक है असामान्य निर्वहन, दूसरा है योनि से खून बहना, तीसरा है जब मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है भारी रक्तस्राव, फिर चौथा इंडिकेशन या साइन क्या है, जब हम बाथरूम जाते हैं तो पेशाब करते समय थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी बेचैनी होती है, थोड़ी तकलीफ होती है। फिर मूत्राशय पर नियंत्रण, कंट्रोल नहीं रहता है, उसमें कभी कभी लीक हो जाती है, और संभोग के दौरान दर्द होता है। और फिर हर एक कैंसर में ये होता है कि हमको थकान सी महसूस होती है, और सर्वाइकल कैंसर में पेड़ों में दर्द होता है। फिर बहुत अगर वजन कम होना शुरू हो जाए, अस्पष्टीकरण, वजन घटने से भी ख्याल आ जाना चाहिए कि ध्यान रखें। और फिर वैसे भी शरीर में अगर दर्द सा महसूस होता हो तो ये इसमें से कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स हो तो हमें चेक करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुझे भी डॉक्टर के पास जाना बहुत पसंद नहीं है, सॉरी डॉक्टर शालिनी, परंतु अगर कुछ तकलीफ है तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए जाना ही चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अभी ये देखिए, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जबकि हिंदुस्तान में 1 लाख नए केसेस होते हैं, अब देखिए नॉर्वे जैसी कंट्री है उसमें 300 नए केसेस होते हैं हर साल, स्वीडन में 450 होते हैं, और ये नंबर सब बहुत ही कंफर्म्ड नंबर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में 900, सबसे ज्यादा यूएस में 12,000 होती। फिर भी ये देखें तो 12,000 3%, ये जो है 0.3% है, ये 0.6% है, 0.9% है, और ये 3% है। हमारे से इतना कम दूसरी कंट्रीज में ये कैंसर है क्योंकि ये लोग ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये 3 चीज मुझे, ये लड़की, ये भावना ने एक्चुअली पिक्चर ड्रॉ करके मुझे दिया है। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, कितनी खुश मिजाज दिख रही है और कितनी स्वस्थ दिख रही है, क्योंकि ये इसको ख्याल है कि सर्वाइकल कैंसर इज प्रिवेंटेबल, ये हम रोक सकते हैं और बहुत आसान तरीके से। प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं वैक्सीनेशन और अवेयरनेस से, सेकेंडरी प्रिवेंशन कर सकते हैं एचपीवी स्क्रीनिंग, VIA और पैप टेस्ट से, और अर्ली ट्रीटमेंट अगर दे दे प्री कैंसर स्टेज में, SIN1 और SIN2 उसको बोलते हैं, अर्ली कैंसर या एडवांस कैंसर में सभी जगह में ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक है, और हर एक ट्रीटमेंट से शक्यता है कि हम क्योर हो सके, इसका उपचार हो सके।
इसलिए ट्रीटमेंट कोई भी अर्ली हो, जल्दी हो तो बहुत अच्छा, पर देरी भी अगर हो गई तो ट्रीटमेंट तो लेनी ही चाहिए। और अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान में जिन लोगों को कैंसर होता है, सभी लोगों को, जिनको ये 1.354 मिलियन लोगों को जिनको कैंसर है, उसमें से 5 से 20% को ट्रीटमेंट मिलती है। ज्यादा तो सबको ट्रीटमेंट भी नहीं मिलती है, नहीं तो उनको अफोर्डेबल है, नहीं तो एक्सेस। इसलिए बहुत ही अफसोस की बात है, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इसमें बहुत हेल्प करना चाहिए और हमारे हेल्थ बजट बढ़ाना चाहिए, खासतौर से लेडीज के लिए बजट जरूर बढ़ाना चाहिए। और इसमें भी खास तौर से सर्वाइकल कैंसर, जिसको हम भारत से दूर भगा सकते हैं या निकाल सकते हैं, वो तो जरूर इसमें हमको मूवमेंट, इसमें हमको वहां तक पहुंचने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, तो हमारे नसीब बहुत अच्छे हैं। बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले, जब मालूम पड़ा कि सर्वाइकल कैंसर HPV से होता है, तो कंपनी, साइंटिस्ट, सब लोग ने इसके लिए वैक्सीन ढूंढने की कोशिश की। और वो वैक्सीन 2 कंपनियों ने जो बनाई, है एक है गार्डासिल, दूसरी है सर्वारिक्स। ये बहुत ही efficacious और क्या मैं पूछ रही हूँ कर रहे हैं तो क्या मतलब है? 9 to 8. I'm asking you what? Sorry. Hello, can I go ahead? Okay. So ये जो Yes, थैंक यू, ये जो 2 वैक्सीन है वो अभी हिंदुस्तान, भारत में भी अवेलेबल है, परंतु एक्सपेंसिव है। इसलिए हम जो है CPA से ये वैक्सीन लेके, हम पैसे इकट्ठे करके वैक्सीन लेके जो गरीब है उनको ये वैक्सीन जरूर देते। नेक्स्ट प्लीज। इसकी 2 जो लड़कियां हैं उनमें 2 डोज की जरूरत है, और जो 18 साल से बड़े हैं उनमें 3 डोज की जरूरत है। 2 डोज, पहला डोज 1 दिन दे और 6 मंथ इंटरवल में, 6 महीने के बाद में दूसरा डोज देना चाहिए, तो इनको एटलीस्ट 14 साल तक प्रोटेक्शन मिलता है। अभी शायद जैसे हमारे पास मोर इंफॉर्मेशन आएगी, हमको मालूम पड़ेगा कि ये लाइफ टाइम वैक्सीन है या 20 साल के बाद वापस देना पड़ेगा। और लेडीज में 3 डोसेस देते हैं, तो उनको 1 डोज देते हैं, 1 से 2 महीने के इंटरवल में दूसरा डोज देते हैं, और 12 मंथ के बाद हम तीसरा डोज देते हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि मालूम नहीं है बच्चे पे कुछ असर पड़ेगा कि नहीं। इसलिए अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन हो तो प्रेगनेंसी के बाद में 1-2 महीने के बाद में वो वैक्सीन ले सकते हैं, या तो अगर गलती से शुरू हो गया और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुए तो स्टॉप करके प्रेगनेंसी के बाद में 1-2 महीने के बाद में वापस शुरू कर सकते। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, हमने ये एक विलेज, एक गांव में हम गए थे, रालीगंज सिटी में। वहां हम लोगों ने लड़कियों को वैक्सीन दिया है, स्कूल गर्ल्स को वैक्सीन दिया है, और ऑल टुगेदर, ये एक स्कूल है, वैसे हमने 6 स्कूलों में वैक्सीन दिया है, करीब 4400 वैक्सीन अभी तक हमने ऑलरेडी दे दिए हैं। नेक्स्ट प्लीज। और वो जो स्क्रीनिंग है, वो स्क्रीनिंग हमने मैं स्लाइड रखना भूल गई, बट स्क्रीनिंग हमने 10,000 लेडीज को HPV स्क्रीनिंग फ्री ऑफ चार्ज CPA से किया हुआ है। सो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, बट सबको अपनी कोशिश करनी चाहिए और अपने खुद ने भी कोशिश करनी चाहिए। सो ये जो है HPV, मैं यहाँ आपको 5 रीजंस बता रही हूँ क्योंकि ये HPV लेना चाहिए। एक तो बहुतों को, मेन और वुमेन दोनों को ये वैक्सीन, ये वायरस इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। जहाँ भी पढ़ाई की है, जहाँ भी संशोधन किया है, वहाँ देखेंगे कि 80% टीनेजर्स, एडोलेसेंट गर्ल्स को
ये वैक्सीन, ये वायरस उनमें प्रेजेंट, और वैक्सीन देने से करीब 70 to 80% को प्रोटेक्शन, 100% प्रोटेक्शन मिलता है। फिर ये कैंसर नॉट ओनली कि ये प्री मैलिग्नेंसी बंद कर देती है, बट कैंसर भी बंद कर देती है। और आपको सबको मालूम है कि प्रिवेंशन, मेरा फोन पकड़ाओ मेरे बेटे। और सब, इसलिए मेरा कहना है कि सब गर्ल चाइल्ड को ये वैक्सीन देनी चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 9। परंतु क्योंकि 9 बहुत ही यंग है, हम लोगों ने अभी तक 11 से स्टार्ट किया हुआ है, 11 to 18 गर्ल्स और 18 to 45 विमेन में देने की हमारे ड्रग कंट्रोलर ने भी हाँ बोली। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, और जो मैंने स्क्रीनिंग आपको बताया, तो मैंने तब बताया था कि 3 टेस्ट है, पैप टेस्ट, HPV टेस्ट एंड विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। ये बहुत तीनों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं थोड़ा आपको बताती हूँ। नेक्स्ट प्लीज। सो ये जो पैप टेस्ट है वो क्या करते हैं कि स्मीयर लेते हैं और वो स्मीयर को स्लाइन में स्प्रेड करते हैं, उसको स्टेन करते हैं पैप स्टेन से, और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि कितनी कोशिकाएं नॉर्मल है और कितनी असामान्य है, कितनी सामान्य है। और हमारे भारत में देखा है कि पैप टेस्ट से, पैप स्मीयर से करीब 5% विमेन, नॉर्मल विमेन, ये हमारे करीब 469 मिलियन विमेन है ये एज ग्रुप में 5% पॉजिटिव है। बट पैप स्मीयर में क्या है, बहुत इसमें होशियारी होनी चाहिए, बहुत सारी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सो इसमें विशिष्टता ये पैप स्मीयर की बहुत हाई है, यानी इसको हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। स्पेसिफिसिटी 90 to 96% है, बट संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी बहुत कम है। ये सेंसिटिविटी होने से बहुत सारे फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव हो सकते। इसलिए भारत में इसकी हमारे गवर्नमेंट ने नहीं तो ये प्रमोट किया है, नहीं तो ऑर्गेनाइज स्क्रीनिंग करते हैं। फिर दूसरी टेस्ट है जो, क्योंकि अभी हमको मालूम है कि HPV से कैंसर होता है, इसलिए ये खुद क्यों हम HPV ना देखें, इसलिए ये हम HPV देख सकते हैं। और अभी एक हाइब्रिड कैप्चर 2 सिस्टम है, बहुत टू अ लार्ज एक्सटेंट ये सिस्टम ऑटोमेटिक है, इसलिए इसमें बहुत होशियारी की जरूरत नहीं है। इसमें कला चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए, पर वो एक हफ्ते में मैं ये टेक्निक किसी को भी सिखा सकती हूँ। कोई भी बैचलर्स ऑफ साइंस हो या कोई इंटर साइंस में पास हो तो हम सिखा सकते हैं। टेक्नीशियन कोई भी बन सकता है थोड़ी होशियारी के साथ में। इसकी भी विशिष्टता और संवेदनशीलता यानी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी दोनों हाई है, इसलिए फॉल्स पॉजिटिव्स और फॉल्स नेगेटिव्स कम होते हैं। और ये टेस्ट से बहुत सारे लैक्स ऑफ पीपल को अभी तक टेस्ट किया है, 16% महिलाएं हमारे भारत में पॉजिटिव है। और तीसरी, क्योंकि ये दोनों टेस्ट, ये पहली टेस्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, दूसरी टेस्ट जो है वो एक्सपेंसिव है, तो इसलिए एक तीसरी टेस्ट हमारी गवर्नमेंट ने दी है जिससे मेरी सहमति नहीं है, उसको कहते हैं विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। सो वो लोग हमारा जो ग्रीव है, हमारा जो गर्भाशय का मुख है, उसमें एसिटिक एसिड लगा के उसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, और अगर एसिटिक एसिड लगने के बाद में अगर सफेदी कहीं दिखाई दे तो फिर उसको चेक करते हैं। ये अच्छा है, परंतु इसमें भी पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी कम है। और बिकॉज लेडीज के लिए है, क्यों नहीं हम बेस्ट टेस्ट करें, क्यों हम सेकंड बेस्ट करना चाहते हैं। आई थिंक लेडीज आर वेरी, women are very important in every country, और वो 50% of the population normally is women, so why not give them the same importance। अभी हमारे कोविड में के प्रॉब्लम आ गए तो नहीं हम रियल टाइम PCR करते हैं,
क्यों हम रैपिड टेस्ट हर टाइम नहीं करते हैं? इसी तरह से अगर हम HPV टेस्ट करें तो हमको बहुत मालूम पड़ जाएगा कि पर्सन सेफ है कि नहीं सेफ है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो ये दो मेरे प्रोफेसर्स हैं, मुझे बहुत उन पे सम्मान है, मैं दिखाना चाहती थी। ये है प्रोफेसर जॉर्ज पापानिकोला, और ये जो सेल है वो असामान्य सेल है जो सर्वाइकल कैंसर होने से पहले हमारे गर्भाशय में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। पर ये जो पापानिकोला टेस्ट है 50 साल 2010 से ये 10 नहीं 50 साल पहले ये टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट थे। बट अभी ये मालूम पड़ने से HPV कैंसर कॉज करती हैं। जैसे हमको मालूम है कि टीबी से हमको टीबी बैसिलस टीबी होता है, तो हम टीबी के टेस्ट कैसे करते हैं, इसी तरह से ये टेस्ट हम कर सकते हैं। और ये जो प्रोफेसर है प्रोफेसर जूरहाउसन, जर्मनी में हाइडेलबर्ग में बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उनको ये काम, ये जो उन्होंने सब काम किया है उसके लिए नोबेल प्राइज साइंस में सबसे बड़ी प्राइज है, वो प्राइज मिली थी 2007 में। और इसके बाद उसके पहले जब उन्होंने ये सब प्रूफ दिखाया तब उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया हुआ था। और मैं बहुत ही प्राउड हूँ कि हमारे साइंटिस्ट ने ये दिखाया है कि HPV, अगर हम HPV की टेस्ट करें, अगर हम उसमें वैक्सीन दें, अगर हम उसका ख्याल रखें, तो संसार में सर्वाइकल कैंसर 0 हो सकता है। नेक्स्ट थिंक ये ऑलरेडी दिखाई दिया है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो सिंपल, कैंसर, सभी कैंसर बंद करने के लिए सादी चीज, अपना आहार देखे, बहुत ज्यादा धूप से बचे, किसी भी रूप में तंबाकू का प्रयोग न करे, अनावश्यक एक्सरे से बचे, नौकरी में व्यक्तिगत सुरक्षा मत कपड़े पहने, अभी आपको बोला है मास्क पहने, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे कोविड के लिए। इसी तरह से कोई भी एक्सरे में काम करता हो तो PPE पहनना चाहिए, और अल्कोहल नहीं यूज करिए। ये सिंपल मीन्स है, ये तो हम सब कर सकते हैं। और नेक्स्ट, आई थिंक आप इम्पेशेंट न हो। ये देखो, हिंदुस्तान में, भारत में तो सभी फल फूल मिलते हैं। जब स्वीडन में मैंने अपना पोस्ट डॉक्टरेट किया था तो वहां इतनी ठंड होती है कि ये सब फल फूल बिकते ही नहीं है। विंटर के जो मंथ्स होते हैं उसमें ये सब मिलते नहीं है। बट सब भाजी पाला, ग्रीन वेजिटेबल्स, वो सब हमने ज्यादा खाना चाहिए। सो देखें हम कितने अच्छे रंग रंग के हमारे फल फूल हैं, उनको खाए। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन की तरफ से मैं आप सब पार्टिसिपेंट्स जो आज यहाँ रजिस्टर हुए हैं, मौजूद हुए हैं, डॉक्टर शालिनी अग्रवाल, डॉक्टर अर्चना, और सब यंग पार्टिसिपेंट्स, सब यंग टीम वर्कर्स ऑफ डॉक्टर अर्चना, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हो सके तो आई वुड लव टू टेक सम क्वेश्चंस। शालिनी जी, आप बताएं। थैंक यू डॉक्टर सारनाथ, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था आपका, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो कि लोगों को समझ में आ सके। दैट वाज रियली नाइस। आई एम श्योर उनके पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, and the hosts permit. Surely, ma'am. Dr. Shalini, you also please share some few words. Thank you, Archana ji. Sarnath has shared in a very simple language, in detail, so many things we got to know now today. And still, ma'am, please you also share some views, because we are doing here the Sure. Yeah, please, ma'am. Before that, can I introduce Dr. Shalini to everyone? Yeah, sure, Swapnali. Yeah, it will be my pleasure to introduce you, Dr. Shalini. Let me just share my screen. Okay, so can everyone see my screen? Yeah.
Okay, so now we have our second eminent guest, who is Dr. Shalini Agarwal. She's a consultant obstetrician and gynecologist at Max Hospital, Vaishali. She's a chairperson, Mission Pink Health, IMA West Ghaziabad. She's a vice person, Women Division Wing, IMA West Ghaziabad, and an academic coordinator at KMGS. She's keen academician and involved in many public awareness programs on women health related issues. I mean, we are really blessed today to have such eminent personalities with us and who are sharing their knowledge. Over to you, Dr. Shalini. We're waiting for you. Thank you so much. Thank you for your very, very kind words. Thanks a lot. I think all of us are trying to do a little bit wherever we can. Aap log bhi, Archana ji bhi, Dr. Saranath, everyone, I think all of us doing our bit. I think that is what will make a difference. But most important, जो लोग कुछ कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने as participants आज इस सेशन को ज्वाइन किया है. वेरी ऑनेस्टली मैं यही बैठ के सोच रही थी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आता है. हम सबको ये सारी नॉलेज है, हम लोग अक्सर जाके ये शेयर करते हैं नॉलेज. इट इज वाइडली अवेलेबल एंड फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट टुडे. हर आदमी गूगल करता है, हर कोई हर सारी चीजें कर रहे हैं. पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है हमारे लिए, मैं अभी पूरा लेक्चर मैम का सुनते हुए यही सोच रही थी. एंड व्हाट आई वाज जस्ट रियलाइजिंग वाज सबसे बड़ा ये चाह रहा है कि हम शायद वो चीजें जो कि कंफर्टेबल नहीं है, जिनके बारे में हम सोचना नहीं चाहते, जैसे डिजीजेस एंड डेथ या कोई बुरी न्यूज या पढ़ाई या एग्जाम्स, हम उनसे थोड़ा दूर भागते हैं, है ना. तो आज की एक सुंदर सी दोपहर, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में तो अच्छी अच्छी सर्दी की धूप खिली हुई है और बाहर बैठ के दोपहर में संतरे खाने का मजा भी है, बच्चों के साथ खेलने का मजा भी है, शाम की मूंगफली और चाय का मजा भी है. लेकिन हम में से वो लोग जो आज यहाँ पर बैठ के इस कैंसर जैसे सेशन के बारे में सुनना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं, आई थिंक दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल एंड आई थिंक दे आर द वंस हु विल मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंस. तो सबसे पहले मैं आप सबको बहुत कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी एंड आई ऑनेस्टली मीन इट दैट यू आर सिटिंग हियर एंड ट्राइंग टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक जिससे हम सब भागना चाहते हैं. मैं ठीक कह रही हूँ. आई थिंक आप सब मानेंगे जो लोग इस चीज के बारे में काम कर रहे हैं कि इस चीज के बारे में जानकारी होना और उसमें कुछ काम करना, यही एक सबसे बड़ा मतलब हिच आता है हमारे सामने, जो एक रोड़ा आता है जिसको कहते हैं कि जानने के बाद भी हम वाकई इसके ऊपर कितना काम करते हैं. तो ये तो ही पहली बात, क्योंकि मैम ने, डॉक्टर सारनाथ ने इंफॉर्मेशन तो लगभग मैम ने सब कुछ सारी दी है, बट एट द एंड ऑफ इट हम में से कितने लोग यहाँ से जाकर और लोगों को अवेयर करेंगे इसके बारे में, और वाकई जो हमने आज सीखा है उनमें से कितने लोग इनमें से कोई टेस्ट या तो करवाएंगे या वैक्सीनेशन लेंगे. सारा का सारा असली मुद्दा इसी चीज पे आके खत्म और शुरू होता है. तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कुछ आप जानना और चाहते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो वो जरूर हमसे पूछें. मैं सिर्फ 2 और 3 बहुत छोटी छोटी चीजें बोलना चाहूंगी. डॉक्टर सारनाथ ने सब कुछ कवर किया हुआ है, बट आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन 2 और 3 थिंग्स जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगती हैं. सबसे पहली चीज, कैंसर क्या है. कैंसर सिर्फ एक ऐसी चीज है जो कि खत्म नहीं होना चाहती. हम सब जानते हैं अगर किसी चीज की शुरुआत है तो उसका अंत होना भी जरूरी होता है. अगर अंत नहीं होता और कोई भी चीज अनरेगुलेटेड तरीके से बढ़ती चली जाए तो वो कभी भी सही नहीं लगती. एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जो घर की टेबल पे खाना खाने तो बैठा, लेकिन बस उसके बाद खाता ही गया, खाता ही गया, खाता ही गया. किचन में बना खाना भी खत्म हो गया, भंडारे स्टोर में रखा खाना भी खत्म हो गया, उसके बाद कूद के नेबर्स के यहाँ भी गया, पूरी सोसाइटी का खाना खत्म किया, नेबर्स का किया. सो दे जस्ट गो ऑन ईटिंग till the time you are eating the food that is kept in the on the table and maybe a little bit from the kitchen, it's okay. लेकिन जब आपने अनरेगुलेटेड तरीके से उसी काम को शुरू कर दिया तो वो चीज अच्छी नहीं लगती. तो कोई भी चीज जब अपनी नॉर्मल लिमिट को छोड़ के आगे बढ़ जाती है तो वो कैंसर बन जाती है. शरीर की कोई भी टिश्यू, कोई भी कोशिका नॉर्मल तरीके से ग्रो करती है, नॉर्मल तरीके से बढ़ती है, ये सही चीज है. परंतु अगर वो बढ़ने के साथ साथ खत्म न हो और बढ़ती ही चली जाए, इतना ही नहीं कि वो सिर्फ अपना ही आहार नहीं, अपने आसपास के मौजूद सारे कोशिकाओं और टिश्यूज का आहार भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो उसको हम कैंसर कहते हैं. दूसरी बात,
कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में शुरू हो सकता है। शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा जैसे हम कहते हैं रोग हो सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा हिस्सा एक पलट सकता है, कोई भी आतंकवादी ऐसा एक कोई सेल बन सकता है जो कि नॉर्मल ना हो के अब नॉर्मल और कैंसर सेल बन जाए। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, आदमियों के भी, बच्चों के भी, औरतों के भी। औरतों के शरीर का कोई भी हिस्सा कभी भी कैंसर बन सकता है, आंख, बाल, फेफड़े, लंग, पेट, आंतें, हर कोई। लेकिन हमारे को जो ईश्वर ने जो स्पेशल ऑर्गन प्रदान किए हैं, जो कि हमें एक औरत, एक माँ बनने में सहायक होते हैं, जो कि हमारे स्तन, जिससे हम अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और एक होती है हमारे बच्चेदानी यानी गर्भाशय यानी कोख, जिसमें हम बच्चे को अपने रखते हैं और जन्म देते हैं। उस कोख का एक हिस्सा जिसको उसका मुंह कहा जाता है, यानी उसको हम सर्विक्स कहते हैं। एक सवाल आया भी था चैट बॉक्स में कि सर्विक्स क्या है, तो सर्विक्स अक्सर लोग गर्दन से समझते हैं, सर्वाइकल हो गया मुझे, यानी कि गर्दन से रिलेटेड कोई चीज है। ये गर्दन से रिलेटेड चीज नहीं होती है, ये अक्सर हमने सुना होगा, मैम आपने भी सुना होगा। सर्विक्स एक छुपा हुआ हिस्सा है वजाइना में, बिल्कुल डीप अंदर, योनि में हमारे बिल्कुल अंदर ये नजर आता है जब हम जांच करते हैं। यूट्रस का माउथ यानी कि गर्भाशय के मुंह को सर्विक्स कहते हैं। ये दो हिस्से ऐसे हैं जिनका कैंसर अनफॉर्चुनेटली औरतों में सबसे ज्यादा होता है, और भारत में भी बाकी देशों के जैसे ही इन दोनों हिस्सों के कैंसर बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरी बात, किसी भी शरीर के अंग को कैंसर से बचाने का प्रमुख तरीका, छोटे छोटे और बहुत तरीके हैं, जैसे हमारी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग न करें, अल्कोहल न लें, वजन नियमित रखें, खान पान अच्छा रखें, लेकिन इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है बीमारी को बहुत ही शुरुआत में पकड़ लेना। कैंसर के साथ मुख्यतः दिक्कत यही आती है कि हम इसको तभी पकड़ पाते हैं, या आप डॉक्टर के पास पहुंच के जांच तब करवाते हैं जब तक ये बहुत फैल चुका होता है और इसने अपने पांव बहुत अच्छे तरीके से आपके शरीर में जमा दिए होते हैं। सारी की सारी प्रॉब्लम यही आती है। दिक्कत हमें दिखती ही तब है, लंग का कैंसर होगा, सांस की प्रॉब्लम होगी, तब तक फेफड़ा और बाकी शरीर काफी हद तक नुकसान पा चुका होगा। स्किन का कैंसर होगा तो भी ये दिक्कत आएगी, आंतों के कैंसर की दिक्कत में भी यही आएगा। इसी तरह ब्रेस्ट और सर्विक्स का होता है। जब तक आपको वो छाती में गांठ पता चलती है, जब तक गर्भाशय के मुंह से अबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम के साथ हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी बहुत फैल चुकी होती है। हम डेफिनेटली उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन यदि हम इसी चीज को बहुत पहले पकड़ लें, जो कि कई बार सालों पहले भी पकड़ा जा सकता है। आप इस बात को समझिए कि अगर उसी कैंसर को आप 5 साल पहले पकड़ लेंगे तो उसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 100% पॉसिबल है। लाइफ जाने की जरूरत नहीं है, जिंदगी को प्रिजर्व किया जा सकता है यदि हम अपने कैंसर को समय रहते पकड़ लेते हैं। तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है, और सारा का सारा बात उसी चीज के ऊपर है। जब आपको दिक्कत होगी, आपको छाती में लंप लगेगा, आप जरूर दौड़ के डॉक्टर के पास जाएंगी। आज हम वहां नहीं बैठे कि हम तब भी नहीं दिखाएंगे, तब तो हम दिखाएंगे ही, लेकिन असली बात यह है कि हम दिखाएं तब जब हमें लंप पता भी न चले छाती। हम दिखाएं तब पता चल जाए कि अरे यहाँ तो कोई कैंसर शुरू हो रहा है। तो ये सारी की सारी बात यहाँ पर आके टिकी होती है। तो सर्वाइकल कैंसर को इतना अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए ये जो सिंपल टेस्ट है जो मैडम ने बताया, विच इज कॉल्ड पैप्समियर, बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल टेस्ट है। कोई दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। गिन के मैं बोलूंगी 5 सेकंड लगते हैं हमको ये टेस्ट करने में, मुश्किल से। बस गए, उस हिस्से को छुआ, कोई कैंची नहीं है, कोई काटना नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, बस उस हिस्से को छुएंगे एक ब्रश से और उसको टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। और उसमें अगर कोई भी कैंसर का तत्व शुरू हो रहा होगा तो हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैथोलॉजिस्ट ये उसको देखकर बता सकते हैं कि अरे यहाँ पर तो कोई दिक्कत होने वाली है, प्लीज आप इसका इलाज कराइए। आप 5 से 10 साल पहले अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे और आप अपना इलाज सही तरीके से करा सकेंगे। अक्सर ये होता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें पता चलता है कि बीमारी इतनी फैली हुई है, तो हमारा ध्यान सबसे पहले ये जाता है, अरे मैं 2 महीने पहले क्यों नहीं आई, मुझे 2 महीने पहले भी तो कुछ थोड़ी दिक्कत हुई थी, मैं 1 साल पहले क्यों नहीं आई, शायद मेरा और इलाज बेहतर हो जाता। तो
वो पीछे जाके सोचने की बजाय यदि मैं आज बैठ के सोचूं कि मैं आज ही अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करूंगी अपने डॉक्टर से, अपना पैप्समियर में जाके कराऊंगी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, तो मैं आपको 100% बता सकती हूँ हम में से कितनी औरतें ऐसी होंगी जो अपनी इस बीमारी को बहुत समय रहते पकड़ लेंगी और इससे निजात पा सकती हैं। न केवल हमें खुद, परंतु अपने साथ में और जो लोग हैं, अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, हर किसी को हमें इस टेस्ट को करने के लिए कहना चाहिए। शादी होने के तुरंत बाद से लेकर 65 साल की उम्र तक हर 3 साल पे हम ये टेस्ट करना आपको एडवाइस करते हैं। महीना नहीं आ रहा होना चाहिए, उसके अलावा आप किसी भी वक्त जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं। तो एक बात हुई इस कैंसर से बचने के लिए पैप्समियर। दूसरा, ये जो वैक्सीन यानी एक टीका है, मैं बहुत ही साधारण शब्दों में कहती हूँ, आज तक क्या आपने कभी सुना है किसी को ये कहते हुए कि तुम एक इंजेक्शन लगवा लो तुम्हें कैंसर नहीं होगा? कभी सुना है? आज हमारे साइंटिस्ट्स ने ये कर दिखाया है कि आप एक इंजेक्शन लगवाइए, आपको ये पर्टिकुलर कैंसर नहीं होगा, एटलीस्ट 99% प्रिवेंट हो जाएगा। इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? हम छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, उनको टीबी से, मेनिंजाइटिस से, पोलियो से बचाने के लिए उनको टीके देते हैं। आज हमारे पास एक ऐसा टीका है जो कैंसर से बचाव कर सकता है। पैसे हमें देने पड़ रहे हैं, हमारी सरकार नहीं दे पा रही, कोई भी कारण है, क्या फर्क पड़ता है? हम अपने बच्चों को कितने गहने, जेवर, मूवीज, कितनी जगहों में जाके खर्च करते हैं, क्या हम अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा खर्चा नहीं कर सकते? एंड फ्रैंकली स्पीकिंग खर्चा उतना है भी नहीं जितना अगर आप सोचेंगे तो। सो प्लीज गो अहेड, think about this vaccine, get yourself vaccinated, take your pap smear test, it is so important. Breast cancer another एक चीज है जो मेरे को उस चीज के बारे में मैं काफी इमोशनली भी कनेक्टेड हूँ उस पर्टिकुलर चीज से। ब्रेस्ट की एक जांच स्वयं करना तो एक इम्पॉर्टेंट है ही, परंतु उसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में भी बताना चाहूंगी जिसको हम मैमोग्राम कहते हैं। मैमोग्राम एक बहुत सिंपल टेस्ट है, एक एक्सरे के जैसा होता है। 40 साल से बाद की उम्र की औरतों को हम ये टेस्ट करते हैं, उनकी छाती का ये स्पेशल एक्सरे किया जाता है जिसे मैमोग्राम कहते हैं। और अगेन ये 5 से 6 साल पहले आपको ये बता देता है कि आपकी छाती में कैंसर की शुरुआत होने वाली है। देखिए, अगर आज कोई सेल कैंसर बनता है, आज एक सेल, तो कल आपको पता नहीं चलेगा। उसको बढ़ते 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 एक गांठ बनने में 6 से 8 से 10 साल का समय लगता है। यदि मैं उस टाइम पीरियड में उस की तरह से अपने शरीर में ये पता लगा लूं कि मेरे शरीर में कोई कैंसर शुरू हो रहा है, तो मैं उसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। सारी की सारी कहानी, जितनी भी सारी आज बातें हुई, सिर्फ इसी चीज के ऊपर है कि किस तरीके से हम इस बीमारी को जल्दी से जल्दी पकड़ लें जिससे इनका इलाज हम सही तरीके से कर सके। तो बस मेरा इतना ही कहना है छोटा सा इस सारी बातों के बारे में। अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। डॉक्टर सारनाथ मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी तो आप प्लीज जरूर कहें। डॉक्टर शालिनी ने बिल्कुल परफेक्ट एंडिंग दी है उनकी मेडिकल और क्लिनिकल एक्सपीरियंस से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, Thank you so much, Dr. Shalini, Dr. Sarana. Thank you so much. बहुत ही informative session था. It's like basically prevention is better than cure. We have to follow that and we have to live by that rule. So yes. So anyone having any questions, please be free to ask. I can see one question in the chat box. किसी ने पूनम जी ने पूछा है कि ब्रेस्ट कैंसर अगर हो चुका है तो क्या फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ सकता है? ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर दोनों के होने के अलग अलग कारण होते हैं। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर आपको हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको शरीर के किसी और हिस्से का कैंसर नहीं हो सकता। ना उसका खतरा बढ़ता है ना उसका खतरा कम होता है। जितना खतरा और लोगों को है उतना ही उस औरत को भी है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। अब मैं एक और थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ कि इस बेसिक इम्प्लीकेशन ऐसा है कि अगर आपको एक कैंसर हुआ है तो आप और भी होशियार हो जाए, ज्यादा अलर्ट हो जाए और चेक रखें, एज डॉक्टर शालिनी हैज ऑलरेडी सेड, कि एक कैंसर का दूसरा कैंसर से इतना निस्बत नहीं है।
परंतु शायद वो हमको बता रहा है कि हमारी अभी साइंस में बोल रहा है कि हमारी जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी टेंडेंसी टुवर्ड्स कैंसर हो सकती है। इसलिए अगर एक कैंसर हुआ तो आप बहुत ही होशियार रहे। एज डॉक्टर शालिनी इज ऑलरेडी सेड, ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो उसका मतलब नहीं कि सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा या ब्रेन कैंसर नहीं होगा, कोई भी कैंसर हो सकता है। परंतु जैसे मैंने बताया कि फैमिली में अगर एक मेंबर को कैंसर हुआ, फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेट कैंसर अगर फादर को हुआ तो 50% इंक्रीज चांस है कि उसके बेटे को भी होगा। इसी तरह से हम थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करें और होशियार रहे तो ज्यादा अच्छा है कि अगर एक कैंसर हुआ है तो हम ऑलवेज अलर्ट रहे कि कहीं और कोई भी बीमारी नहीं हो। इसलिए जो रेगुलर गाइडलाइंस है कि चेकअप करने के लिए जाना चाहिए, ओवरवेट नहीं, एक्सरसाइज करना चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे बट बहुत सारी एपिडेमियोलॉजिकल डेटा है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ और उसके क्योर हो गया, उसके बाद में भी अगर ये जो लेडी हो हर रोज 40 मिनट्स वॉक करे या एक्सरसाइज करे तो द चांसेस ऑफ रिकरेंस आर मिनिमाइज्ड। सिमिलरली अगर हम हेल्दी रहे, एक्सरसाइज करें तो ऑल द कैंसर्स का जनरल चांसेस ऑफ कैंसर आर लेसन। सो इसलिए अपना स्वास्थ्य का बहुत ही ख्याल रखें, whether it's with respect to cancer or whether it's respect to overweight or whether it's respect to any other smoking or alcohol or anything. If you're careful about your health, then automatically there is a little lowering of possibility of cancer. So be careful, be alert. And one point I think I forgot to mention, but I liked very much of Dr. Shalini. She mentioned that you should always be aware, you should always be careful, you should always remain healthy during her conversation in different aspects, in different ways. It's very important for all time, whether it's cold, COVID, cancer, any other condition also. If you're generally healthy, the chances are that you are a little more safe from cancer. Cancer is a disease of the older generation generally. Very little pediatric cancer, बच्चों में cancer काफी कम होता है। इसलिए जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, हमारी सेल्स भी, हम चश्मा, आंखें बिगड़ जाती है, चश्मा पहनते हैं, कान बिगड़ जाते हैं, इयरिंग एड डालते हैं, नी रिप्लेसमेंट करते हैं। उसी तरह से कैंसर में भी कई ऑर्गन्स में कैंसर होने की शक्यता बढ़ती रहती है। मैंने बताया about 45 years you should be very, very careful. Thank you, ma'am. Juhi ka question hai. I want to ask that my mother had a non-cancer lump on her right breast and it was removed 2 years ago. Now she's feeling pain in another breast also. What is your opinion? It must be, yeah, it must be examined. Yes, it must be examined whether it has an independent lump on its own, अपने आप में कोई और नया lump develop हुआ है या कोई cancerous या non cancerous चीज है। इस breast को भी उसी तरीके से check किया जाना चाहिए जैसे किसी भी एक new person को check करना होगा। Just because एक में non cancer था does not mean कि दूसरे में भी non cancerous चीज ही होगी। वो malignant भी हो सकती है, benign भी हो सकती है। तो पूरा checkup including a clinical examination, an ultrasound of the breast, एक ये सारी चीजें करने के बाद तो उसको उसी तरीके से चेक करना चाहिए। थैंक यू मैम। वंशिका रिचा पूछना चाहते हैं, मैम ब्रेस्ट कैंसर का पता कैसे चलेगा? So already, breast cancer. Yes. Sorry, already Dr. Shalini. Please बोलिए मैम, बताएं। कि there will be a lump after 40, 45. You must anyway go for a checkup.
including mammography. But you have to be alert, and there's a possibility that a lot of ये बहुत सारे lumps जो होते हैं वो शायद fibroids हो या benign lump हो, but एक lump भी अगर cancerous है इसलिए उसकी investigation thoroughly करनी चाहिए. And very strong possibility जिनको fibroids होते हैं उनको वो tendency of fibroids भी रहती है, so शायद दूसरे breast में भी fibroid हो, but that has to be ruled out. 100% checkup के लिए जाना ही चाहिए. And very lucidly Dr. Shalini has told that you should check it out and go ahead, then decide what's the next step. I would just like to add here कि हालांकि हम मैमोग्राम 40 years की एज के बाद ही एडवोकेट करते हैं. Definitely. Except परंतु इसका मतलब ये नहीं है, स्पेशली आजकल की सिनेरियो हमने कई बार देखा है 4 years भी हमारे पास हैं जिनको की ब्रेस्ट कैंसर. अनफॉर्चुनेटली एक ही चीज ये है कि कोई भी लंप यानी कि कोई गांठ अबनॉर्मल यदि हमें अपनी ब्रेस्ट में नजर आ जरूरी है, फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे जाएगी एज अ रूटीन, यानी कि जिसको कोई भी दिखे, हर एक औरत को ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाती है और उनकी बात है. डॉक्टर शालिनी मैम, आप अपना ना वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपकी ना आवाज कट कट के आ रही है, फिर शायद बैंडविड्थ आपका लो है. वीडियो ऑफ कर लीजिए मैम, कोई इशू नहीं है, तो हम अच्छे से सुन पाएंगे. हाँ जी ओके मैम. ओके, थैंक यू मैम. अच्छा, ओके, राइट मैम, राइट. तो मैंने सिर्फ यही बताया अभी कि ब्रेस्ट की जांच जरूर करनी चाहिए और 40 के बाद मैमोग्राम कराना चाहिए. परंतु कोई भी लंप किसी भी उम्र पहले या 40 से बाद उसकी जांच आगे करवाना बहुत जरूरी है. जांच की ये बताना संभव नहीं, छोटी उम्र में भी हो सकती है, बड़ी में भी हो सकती है. Particularly, I think मैंने बताया था कि there is a small component, 5 to 10 to 12% जिनको हम hereditary breast ovarian cancer syndrome कहते हैं, जिनमें 2 genes हैं, BRCA1 and BRCA2, which are the most prominently mutated gene. So इसलिए 25 साल 30 साल में lump हो तो भी चेक करना चाहिए, और 45 years 50 years में हो तो भी चेकअप करना चाहिए. एक बार आपने वो लंप फील किया या कुछ भी तकलीफ हुई, निपल में से थोड़ा डिस्चार्ज निकल रहा हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर को बताइए, उसमें क्या बड़ी बात है. चेकअप करवाइए, अथॉरिटी से चेकअप करवाइए. And I'm sure in Delhi you have doctor already there, Shalini is already there to help out. So please, it's a must that if there is any problem, you must definitely go to the doctor. अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो भी 40-45 years के बाद में मैमोग्राफी, फर्स्ट मैमोग्राफी, even without any problem, be very conscious of your health. Remember, you are the most important person in your life. Then comes everyone else, and that we should remember. Archana ji, I can see you shaking your head. That's true. That's true, ma'am. Yes, that's why we all are here. Actually, ma'am, we are trying our best. Like आप देखिए, दिल्ली से, गाजियाबाद, and all over India, and you are from Mumbai, ma'am. You have we approached to you, and we are really thankful to you, ma'am. कि हम लोग सभी लोगों को अवेयरनेस दे पा रहे हैं, और इस सेशन को हम लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किया है. बच्चों का, मदर्स का कुछ और क्वेश्चंस अगर कुछ रह गया अभी भी तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे ग्रुप में. वी विल डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चंस, और हम डॉक्टर शालिनी और डॉक्टर सारनाथ के कांटेक्ट में रहेंगे और आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करते रहेंगे. हाँ जी मैम, है ना? We are thankful and obliged to you, Bhavna. No ma'am, please, it's our privilege to have you both, ma'am.
Really And it's wonderful. wonderful when we also feel that it was our privilege to be part of your team. You, So Magna? true, ma'am. Totally agree. Totally agree.